हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे सेलेनियम विद जावा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस सीरीज की ये 7वीं वीडियो है। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा पहले की वीडियो आप कवर कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग सीरीज के पैरेलल में दूसरी सीरीज भी आप देख सकते हैं जिसमें हम कवर कर रहे हैं जॉब्स फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेशन। आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको वेरियस कंपनी में जो वैकेंसीज हैं, जो ओपन पोजीशंस हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आप डायरेक्ट आप एचआर को मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा एंड आपको जल्दी ही मैनुअल या ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोफाइल में आपको जॉब मिल जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम आरसी, व्हाट इज द डिफरेंस between Selenium IDE, Selenium RC, and Selenium WebDriver. These are the component of Selenium. We can say Selenium is a umbrella term. This is Selenium. Let's suppose Selenium, and under this Selenium, these are the different. The first one is Selenium IDE, and the second one is Selenium RC. Currently, Selenium RC is deprecated. There is no use of Selenium RC deprecated. So Selenium RC के बाद आता है Selenium WebDriver. ये कंपोनेंट है, तीनों ही कंपोनेंट है Selenium के। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Selenium IDE, Selenium RC and Selenium WebDriver. Selenium IDE, it support record and playback. Selenium IDE रिकॉर्ड एंड प्लेबैक फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। Selenium RC डजंट सपोर्ट एंड Selenium WebDriver also डजंट सपोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका, अभी देख लेते हैं। अगर आप नेविगेट करते हैं Selenium की ऑफिशियल वेबसाइट पे and if you navigate to Selenium IDE section, then we can see it's just a Selenium we can say extension. There is no need of coding or any technical knowledge. We have to just install Selenium IDE as an extension. Let's suppose this is your Selenium IDE. We can install in Chrome or in Firefox browser. Let's suppose I'm trying to install it in Chrome browser. I click on Chrome download, then it will be navigate to another page and it will give a option add to Chrome. I clicked on add to Chrome, then click on add extension. It will take some time. Then let's navigate to one website which we want to automate. Let's suppose we can say Technical Ninja or Tutorials Ninja. This is the website that we want to automate via Selenium IDE. So you have to just navigate to extension, then click on Selenium IDE. So this is the interface of Selenium IDE. It gives an option to create a project. So let's create a new project, give some proper name. Let's suppose Tech Bharat. Click on OK. So this is the interface of Selenium IDE. In Selenium IDE, we have to just record the action which we are performing on the UI of any website. So there is option of record. When you click on record, then it require URL. So we have to provide the URL of a website which we want to automate. Let's suppose this is the URL and click on start recording. जैसे ही आपने क्लिक किया स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे तो Selenium IDE ने ब्राउजर को हिट किया, URL को हिट किया, आप अभी देख सकते हैं। एंड आपको बॉटम में आपको एक सिंबल मिल रहा है जिसमें आपको आप देख पा रहे हैं Selenium IDE इज रिकॉर्डिंग। आप जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे वो आपका एक्शन रिकॉर्ड होगा Selenium IDE में। लेट्स सपोज आई क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन
then let's suppose again click on some, enter some product, let's suppose HP laptop, and click on search button. So you can see जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी यूआई पे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। हमने पहले ब्राउजर ओपन किया, ये ब्राउजर का साइज है, देन हमने इनपुट इससे लॉगिन किया इस वाली आईडी से, देन ये पासवर्ड है उसका, देन हमने क्लिक किया कंटिन्यू बटन पे। तो ये पूरा एक्शन आपको परफॉर्म हो रहा है सेलेनियम आईडी के थ्रू। अगर आपको ये स्टॉप करना है तो आपको वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे आप स्टॉप करेंगे तो आपके पास पॉपअप आएगा टू गिव सम नेम ऑफ दिस टेस्ट, लेट्स सपोज आई एम गिविंग टेस्ट 1, क्लिक ऑन ओके। सो आपका ये पूरा जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया वो आपका रिकॉर्ड हो चुका है। एंड जब भी आप इसको रीटेस्ट करना चाहें तो आपको क्लिक करना होगा रन करंट टेस्ट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किए थे वो ऑटोमेटिक आपके रन होंगे आपकी यूआई के ऊपर। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किए थे, ये हमने आईडी यूज की थी, ये पासवर्ड था, लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये पूरा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, जो भी एक्शन हमने परफॉर्म किया था टू वाइल रिकॉर्डिंग द सेशन। सो ये आपका मतलब है रिकॉर्ड एंड प्लेबैक का। मैं सेकंड डिफरेंस की अगर बात करूं, सो सेलेनियम आईडी इज जस्ट एन एक्सटेंशन, ये आपका एक एक्सटेंशन है। एंड बट सेलेनियम आरसी ये आपकी लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल करनी होगी, आपको इंपोर्ट करनी होगी। एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर इज ऑल्सो ए लाइब्रेरी। सेलेनियम आईडी हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अगर आपको यूज करना है सेलेनियम आईडी तो आपको एक्सटेंशन यूज करना होगा, आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा अपने क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर। बट अगर आप यूज करना चाहते हैं सेलेनियम आरसी या सेलेनियम वेब ड्राइवर को तो आपको लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होगी। यू हैव टू डाउनलोड द जार फाइल, एंड जार फाइल डाउनलोड करने के बाद ही आप सेलेनियम आरसी या सेलेनियम वेब ड्राइवर को आप यूज कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड, Selenium ID is a codeless, it is a codeless automation tool। यहाँ पे हमें कोई भी कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप Selenium RC आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको नीड टू राइट द कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप Selenium RC के अंदर आप कोड लिख सकते हैं, उसके बाद ही आप Selenium RC को आप यूज कर सकते हैं। एंड सेम विद Selenium वेब ड्राइवर, if you want to use Selenium web driver then you have to write down the code in any language like Java, Python, PHP, C sharp, etc. Need to write the code. Then next difference, non-technical users can use it, बट Selenium RC के अंदर ऐसा नहीं है। वी कैन से वी हैव टू नॉलेज, और वी कैन से टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल नॉलेज, अगर आप Selenium RC को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए लाइक सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एंड सेम विद Selenium वेब ड्राइवर, टेक्निकल नॉलेज। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर आप Selenium RC को आप यूज करना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट द सर्वर, नीड टू स्टार्ट द सर्वर if you want to use Selenium RC। यही एक ड्रॉबैक था जिस वजह से Selenium RC को डेप्रिकेट किया गया था। जब भी आप Selenium RC को आप यूज करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले सर्वर को आपको स्टार्ट करना होगा, बट Selenium RC एंड Selenium वेब ड्राइवर के साथ ऐसा नहीं है। नो नीड टू स्टार्ट द सर्वर, आप सर्वर को स्टार्ट किए बिना ही आप Selenium RC और Selenium वेब ड्राइवर को आप यूज कर सकते हैं। हम इसको देख भी चुके हैं। अगर आपको Selenium IDE यूज करना है तो आपको सिंपली Selenium IDE का एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है, एंड देन जस्ट आप नॉर्मली जैसे रिकॉर्ड करते हैं आप वीडियो, तो उस तरीके से आप Selenium IDE को आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज Selenium RC is deprecated, but Selenium IDE and Selenium web driver
is not deprecated, not deprecated. सेम विद सेलेनियम वेब ड्राइवर, नॉट deprecated. इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, सेलेनियम आईडी सपोर्ट ओनली क्रोम एंड फायरफॉक्स. अगर आप सेलेनियम आईडी को यूज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्रोम एंड फायरफॉक्स ब्राउजर पर ही आप यूज कर सकते हैं, बट सेलेनियम आरसी एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर को आप किसी भी ब्राउजर पे आप यूज कर सकते हैं. सपोर्ट ऑल पॉपुलर ब्राउजर. सेम विद सेलेनियम वेब ड्राइवर. देन नेक्स्ट डिफरेंस इज सेलेनियम आईडी का जो मेंटेनेंस है काफी हाई है. मेंटेनेंस का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज कोई भी चेंजेज आपके यूआई पे हुआ एंड चेंजेस होने के बाद आपका जो आपने पहले स्क्रिप्ट जो टेस्ट आपने बनाया था बाय सेलेनियम आईडी, सो उसको आप दोबारा से यूज नहीं कर पाओगे. आपको दोबारा से वो रिकॉर्ड करना होगा एंड देन दोबारा से आप उसको यूज कर पाएंगे. सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपका लॉगिन फंक्शनैलिटी में या किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर अगर चेंजेस हुआ है तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आप चेंज कर पाओ. ऐसा पॉसिबल नहीं है सेलेनियम आईडी के अंदर. सो इस वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो काफी हाई है. बट सेलेनियम आरसी एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर का मेंटेनेंस कम है. अगर किसी भी मॉड्यूल के अंदर चेंजेस हुआ है तो आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ही आप चेंज कर सकते हैं. पूरा कोड या पूरा स्क्रिप्ट आपको दोबारा से लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है. सेलेनियम आरसी मेंटेनेंस इज लो. सेम विद सेलेनियम वेब ड्राइवर. Then next difference is simple to use. आप नॉर्मली एक्सटेंशन को यूज करने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट इसको आप यूज कर सकते हैं. बट विद सेलेनियम आरसी ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए, लाइब्रेरी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए एपीआई लाइब्रेरीज की. उसके बाद ही आप सेलेनियम आरसी एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर को आप यूज कर सकते हैं. नॉट इजी टू यूज. सेम विद सेलेनियम वेब ड्राइवर. देन नेक्स्ट डिफरेंस इज सेलेनियम आरसी एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर. जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स नॉट ए एक्सटेंशन, वी हैव टू इंस्टॉल द जार फाइल और लाइब्रेरी, एपीआई लाइब्रेरी. सो जो एपीआई होती हैं एसी आरसी की, सेलेनियम आरसी की, so those API are non-object oriented API, and Selenium web driver की जो API होती है वो object oriented होती है. object oriented library. and Selenium ID तो आपका जस्ट एक एक्सटेंशन है. so it's not an library, it's not an API library. Then next difference is सेलेनियम आरसी की जो एपीआई लाइब्रेरी होती है वो काफी स्मॉल एंड इजी होती है. बट इन केस ऑफ सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई जो लाइब्रेरी है वो काफी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज है. एंड सेलेनियम आईडी इट्स नॉट एन एपीआई लाइब्रेरी. देन नेक्स्ट डिफरेंस इज सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट करता है लिसनर कंसेप्ट को, लाइक टेस्ट एनजी लिसनर. लिसनर्स को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए अब हम डिफरेंस पे फोकस कर रहे हैं. सो जो मेजर डिफरेंस है और वी कैन से जो तीनों में डिफरेंस है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट करता है लिसनर्स कंसेप्ट को एंड सेलेनियम आरसी डजंट सपोर्ट लिसनर कंसेप्ट. and this is Selenium ID also not support, doesn't support. So ये कुछ मेजर डिफरेंस है. इस वीडियो में अराउंड हमने 13 to 14 डिफरेंस कवर किए. इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आप लिंक के थ्रू आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं. एंड अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में या आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग डाउट एंड अदर क्वेरी रिगार्डिंग मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग. सो डेफिनेटली वहाँ पे आपको आपका सोल्यूशन आपका जो क्वेरी है वो रिजोल्व हो पाएगी. एंड अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारा एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने कवर किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
सेलेनियम IDE, सेलेनियम RC एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर। आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे सेलेनियम आर्किटेक्चर, सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।